Bismillahirrahmanirrahim. We're going to do Surah Takatur, which is a Makki surah. It has 8 verses. Takathur. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqeen la tarawunnaha al-jahim thumma la tarawunnaha ayna al-yaqeen thumma la tus'alunna yawma azin anin na'im. गाफिल कर दिया तुमको कसरत के मुकाबले ने, हत्ता के ज़ियारत की तुमने कब्रों की। हर किस नहीं अनकरीब तुम जान लोगे, फिर हर किस नहीं अनकरीब तुम जान लोगे, हर किस नहीं काश तुम जान लो इल्म से यकीन के। अलबत्ता तुम ज़रूर देखोगे जहन्नम को, फिर अलबत्ता तुम ज़रूर देखोगे इसको देखना यकीन का, फिर अलबत्ता तुम ज़रूर पूछे जाओगे इस दिन बारे में नेमत के. Okay, now I've done the Urdu. I'm going to do the English translation and then go into the explanation. Rivalry in amassing wealth has made you negligent until you reach the graves. Never. Soon you will come to know. Never. Soon you will come to know. If you had certain knowledge, you would not have preoccupied yourself with rivalry. By Allah, you will definitely see hell. By Allah, you will then surely see it with the eye of certainty. Thereafter, on that day, you will definitely be questioned about the bounties. May Allah save us on the day of Qiyamah. Surah Takatur, the central theme of Takatur is talking about the negligence. Due to what? Due to worldly blessings and worldly pleasures. Negligence kahan se aayi wo bhi bata diya. The time of revelation is the 4th to the 5th Nabwi. And the first part of the surah is talking about remembering of death, remembrance of death. ये सबसे बड़ी मुश्किल काम है. जिसको कहते हैं कि भाई ये सुन लो या ये सूरत सुन लो या नहीं हमें प्लीज मौत के बारे में कुछ ना बताएं, कब्र के बारे में कुछ ना बताएं, हमें बहुत डर लगता है. तो अगर अभी नहीं डरेंगे तो कयामत के दिन की तैयारी कैसे करेंगे हम? कब्र की तैयारी कैसे करेंगे? The second is the difference between ilmul yaqeen and ainul yaqeen. And the first ayat, it is addressed to all human beings. Alhaakumut takasur. It's not about ईमान वाले, नॉन ईमान वाले, atheist, काफिर. ये इसके अंदर कोई distinction नहीं है. This ayat is talking to entire of humanity. This is an address to all of humanity, Muslims and kafir, and it is talking about what? Negligence. Allah Pak is saying, all of you look at your negligence. What is this negligence? अब ये नहीं mention किया सुभान अल्लाह आयत के अंदर कि what is this negligence that Allah is talking about. So now, because it is not specifically mentioned, then we have to look at it in a broader sense. ठीक है? What is being neglected? We have to look at it in a broader sense. And human morality. अब इसके अंदर, okay, let's start counting. सबसे पहले, what is being neglected? Human morality is being neglected. Characteristics of ethics are being neglected. Yes, we're talking about now. Let's make it relevant to our time and to us. What is being neglected? Humanity is being neglected. The honor of being a human being is being neglected. The honor of being the children of Adam, it is being neglected. Is that how we carry ourselves? Do we have enough humanity, enough honor for ourselves and for other people to treat ourselves as the children of Adam? Human dignity, it is being neglected. Humans are being treated like animals. The truth that the world is not our permanent residence is being neglected. Why is it being neglected? Like I said, उनको डर बहुत लगता है. अरे नहीं बस मौत की क्या बात, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? We're so comfortable, you know. We have our bungalows and all of this, and we're so set in the dunya. We don't even want to think about what's coming next. We don't even want to think about dying. We don't want to think about death. It just makes us uncomfortable. That is their attitude. So this is being neglected. And because death is being neglected, therefore the purpose of life is being neglected. Because the purpose of life of every one of us is Allah's ibadah. To worship our Rabb. This is what we were created for. लेकिन जब तक मौत और आखिरत को याद नहीं करेंगे, how are we going to find our purpose in life? And then justice is being neglected. Rights of others are being neglected. Iman is neglected. Allah is neglected. Rasul is neglected. Farishte, angels, akhirat, the books, the holy books, सब कुछ neglect कर दिया इंसानों ने दुनिया पे.
तकदीर इज नेग्लेक्टेड, रोजा नमाज हज ज़कात इज नेग्लेक्टेड, तकातुर, नाउ व्हाई इज इट नेग्लेक्टेड? ये सारी जो उल्टी पुल्टी हो गई पूरी दुनिया, ये जो सारा तमाशा बना है, जो we've lost sight of everything important, why is it neglected? आयत नंबर 2 इसके अंदर है, नहीं, आयत नंबर 1 के अंदर the word is तकासुर, तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। अच्छा, तकासुर के अंदर एक तो you have to understand that it is a love that is so strong that it makes you forget about important things. Takasur is not a good love. It's not a good love. You can't use takasur, the word of takasur, for the love of Allah. You can't. It's a love or an interest which is so strong, but it's in the wrong thing. And because it's in the wrong thing, it's going to make you neglect the most important thing in your life. And which is what? Your akhirah, your qabr. अच्छा, अब तकातुर का मतलब क्या है? The rat race. Let's make it relevant to ourselves. This is the rat race. Allah Pak is saying the rivalry and amassing wealth. What is this rivalry and amassing wealth? उसके पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं? उसके पास लाखों हैं तो मेरे पास करोड़ों होने चाहिए. If he has crore or millions or billions, then I should have at least trillions. If he has 3 cars, I should have 4 cars. If he has 2 houses, I should have 3 houses. It's always one up. ये जो एक टंगड़ी ऊपर करनी है, इसी का नाम तो रैट रेस है. यही तो कंपटीशन है. और अल्लाह पाक कह रहे हैं, this rat race is taking you in a race to the bottom. Bottom of what? Bottom of hell. तुम जो दौड़ लगा रहे हो इस रैट रेस के अंदर, you think you're going up? You're not going up. You are racing down towards the pit of hell just because of this competition. Why? अच्छा, now Allah has left it open, this rat race. He didn't specify किस चीज के अंदर ये रेस है. उसके अंदर फिर मायने की वुसअत बढ़ जाती है. It becomes very, very large, the landscape that this rat race can now cover. And for me and you, it gives us a lot to think about. कि हमारा तकासुर किधर है? This is show off, okay? हमारा तकासुर किधर है? Let's become very, very honest. And it's not going to sound very nice, but we have to be honest. We have to be honest because हमने अपनी भी correction करनी है, and we have to be able to identify how to help others also to correct themselves. So first of all, wealth. जब वेल्थ आते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? आई हैव मनी. अब लोग देखें कि मेरे पास कितना पैसा है. दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. पैसा होना itself is not so important as how do I show them. So you show them on Facebook, you show them on social media, you show them on Instagram, you show them on every, जिस महफिल में बैठी हैं, you will show them. ओह, पता है वो मैं ट्रैवल नहीं कर सकी, लेकिन मैंने 4-5 शनेल के नए बैग्स मंगवा लिए, दुबई से मेरी फ्रेंड आ रही थी. बिकॉज ये है, ये तकासुर है. किसी तरह पता चल जाए, दूसरे के ऊपर रोब जम जाए मेरे पैसे का, मैं इतनी अमीर हूं. ये बहुत घटिया चीज है, बहुत घटिया चीज है. अल्लाह बचाए हमें इससे. और लोग देखें, एंड नॉट ओनली देखें, देयर अल्टीमेट मेंटालिटी इज लोग देखें और जलें. जले मुझसे, मेरे पास क्या क्या कुछ है. जले मेरे माल से और मेरी दौलत से और मेरे शौहर से, और जले. और फिर जब जलते हैं, फिर जब नजर लग जाती है, उसके बाद बहुत रोते हैं, हाय अल्लाह अब क्या हो गया. तो अब क्या हो गया? पहले इतनी मुसीबत क्यों पड़ी थी जो पूरे सोशल मीडिया को अनाउंस करनी थी. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट ब्लॉगर्स. We are not bloggers. We do not have to update every single moment of our life on social media. Except this, please. Safeguard. अपने बच्चों को बचाएं लोगों की नजरों से, अपने माल को बचाएं, अपने इंटेलेक्ट को बचाएं. अगर शौहर अच्छा है तो अल्लाह का वास्ता उसको भी बचाएं सोशल मीडिया से. अपनी औलादों को बचाएं. मत अपने चर्चे मत लगाएं. किसी के आगे अनाउंस करने की जरूरत नहीं है. You should be happy with your own happiness. That is what true happiness is. अगर हैप्पीनेस, अगर खुशी डिस्प्ले ही करनी है, तो फिर वो खुशी नहीं है, वो एक्टिंग है. इसको समझे बात को. दिस इज तकासुर. एंड अल्लाह पाक इज सेइंग व्हाट? दिस इज कॉमन इन ऑल पीपल. चाहे मुस्लिम है, काफिर है, यहूद है, ईसाई है, जो भी है, everyone is involved in this takasur. And this is the power and prestige, the love of wealth, and then the love to show it off.
हदीस का मफहूम आता है, 2 hungry wolves that have been left in a flock of sheep, they cannot destroy the sheep, but it would be less than how a human's wish or hunger for wealth and status will destroy his deen. इसका मतलब है 2 भेड़िए वो बकरियों के रेवड़ को कम नुकसान पहुंचाएंगी rather than this love of the दुनिया that is going to give a greater नुकसान to our deen, to our iman. Imagine करें how harmful it is. And this competition, now let's look, competition हम किस चीज में करते हैं? I'm going to try and go into a little bit of depth. हम कहते ना नहीं बस मैं तो नहीं करती, सबसे पहले when you start discussing तकातुर हम कहते हैं नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती. So let's look at the broadness of the word and then we'll try and figure out कि इसमें से क्या मेरे ऊपर apply करता है. We'll be honest with ourselves in our own hearts. Okay? Wealth के अंदर there is show off and there is competition. So within wealth what do we look at? The houses, the size of houses, wow, उसका घर, फिर घर के अंदर सोफा, फिर सोफे, फिर कर्टन्स दुबई से होने चाहिए, बाथरूम की एक्सेसरीज दुबई से होनी चाहिए, बाथरूम की टाइल्स मार्बल की होनी चाहिए, बाथरूम का जो टॉयलेट बोल है वो दुबई से आना चाहिए. टॉयलेट बोल, नाउजुबिल्लाह, इज दैट समथिंग टू compete in? टॉयलेट बोल हमारे दिमागों का क्या हो गया? आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस. फिर उसके बाद गैजेट्स within the house and within the kitchen and within the accessories of the house and the lights and वो चुटकी बजा के लाइट ऑन हो जाती है, ये भी कंपटीशन है. फिर उसके बाद कपड़े एंड कपड़ों के अंदर डिजाइनर कपड़े और डिजाइनर जूते एंड डिजाइनर घड़ी एंड डिजाइनर इयररिंग एंड आई थिंक अब जब तक हमारे बच्चों के बच्चे होंगे डिजाइनर पैम्पर भी आ चुके होंगे. देयर इज डिजाइनर इन एवरीथिंग, इट इज अवेलेबल कॉन्स्टेंटली. एंड डिजाइनर है क्या? ब्रांडिंग है. व्हाई डू यू नीड दैट ब्रांडिंग सो बैडली? टू बी एक्सेप्टेड. The only reason you're carrying that brand is because you want other people to know, देखो मैंने 5 लाख रुपए का बैग उठाया हुआ है, देखो मुझे, मेरे माल को देखो, मुझसे इम्प्रेस हो, मैं इतनी अमीर हूं. क्योंकि अगर मैं वो 5 लाख का बैग नहीं उठाऊंगी तो लोग कहेंगे लो बेचारी ये तो ऐसी कंगली है, नॉर्मल साइज में, लुक एट हर, ऑल्डो का बैग लेके घूम रही है, इसके पास तो नहीं है 5 लाख रुपए. तो फिर समझे ये. अच्छा, फिर कंपटीशन और कहाँ करते हैं हम? डिजाइनर जोड़ों के अंदर. डिजाइनर जोड़ों में बिलीव यू मी लोगों की शादियां टूट गई हैं इस बात के ऊपर कि जी सास ने मुझे डिजाइनर जोड़ा नहीं दिया, हमने रिश्ता रिफ्यूज कर दिया. ये तो हाल हो गया दिमाग के. फिर ज्वेलरी, कंपटीशन इन ज्वेलरी, इन कार्स, इन फोन्स, इन वेकेशंस, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे. फिर प्लेन के अंदर जब हम बैठते हैं तो फर्स्ट क्लास वाले कैबिन की तो अलग से वीडियो बन के लगेगी सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों को पता चले कि हम तो फर्स्ट क्लास वाले कैबिन में गए हैं, वो तो सस्ता नहीं है. देन सो द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ इटसेल्फ इज फिनिश्ड. तकासुर आपकी जिंदगी का मजा खुद ही खत्म कर देता है. अल्लाह पाक इज शोइंग यू एवरीथिंग यू डू. द किड्स, योर किड्स, कंपटीशन बच्चों में कहाँ आती है? व्हाट स्कूल डू दे गो टू, व्हाट आर देयर ग्रेड्स, उसमें कंपटीशन. द कॉलेज, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, शो ऑफ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, कौन से स्कूल में एडमिशन मिला. सेलिब्रेशंस, बर्थडेज, लुक एट आवर बर्थडेज. ऐसे लगता है वाकई में जब आप ये आयतें पढ़ती है हम पागल हो गए, पागल हो गए. दिस इज द तकासुर जिसने हमारे दिमागों के ऊपर एक धुंध सवार कर दी है, और ऐसी धुंध के हमें खुद नहीं नजर आता कि हम कितने स्टूपिड लगते हैं ये हरकतें करते हुए. जस्ट लुक एट आवर बर्थडेज, लुक एट आवर शादी, लुक एट आवर बेबी शावर्स, पिक अप एनी इवेंट, एनी dinner, any party that you have, and I'm going to be very honest now, 78 to 80% of people who are there, you don't even like them. You don't even like them. They're only there because they're on the social list of who's who. And you have to have the social list of who's who attending your party so that you will also be accepted as the social list of who's who. How stupid! 80% लाखों रुपए की बर्थडेज करते हैं, लाखों रुपए की. 80% of the people there, you don't like them, you don't want them there. You're not happy to see them, they're not happy to see you. ना वो आपके खैर ख्वाह है, ना वो आपको वेल विशर्स है. मुझे बताएं हमने क्या किया अपनी जिंदगी के साथ? फिर क्यों बनाया अपना इतना बड़ा तमाशा? एक सोचे ना, बिकॉज अल्लाह तो कयामत के दिन ये सब एक्सपोज कर देगा तमाशे, अल्लाह सब दिखा देगा कयामत के दिन. फिर सोशल मीडिया पे अब एक बात समझे, हम एक्ट्रेसेस तो नहीं है, हम सेलिब्रिटीज नहीं है, हम ब्लॉगर्स नहीं है, हमें फैन फॉलोइंग क्यों चाहिए? जैसे ही तस्वीर लगाई सोशल मीडिया पे अब उसके लाइक्स गिनते रहेंगे पूरा दिन,
और अगर ज़्यादा लाइक्स नहीं आए तो डिप्रेस हो जाएंगे कि ज़्यादा लाइक्स नहीं आए। अब समझे मेरी बात को, फिर वो सेल्फीज़, पॉपुलर सेल्फ को करना है तो सेल्फीज़ भी तो लेंगे। अच्छा, तो हम खुद कौन है? हमारी अपनी नफ्स से हम खुद ही बुत बन गए। कुफारे मक्का के पास तो बुत थे ना जो उन्होंने बनाए थे, जिनके साथ वो शिर्क करते थे। हम अपनी जिंदगियों के अंदर खुद ही अपने शिर्क के बुत हैं। हमारा अपना नफ्स इसको इतना बड़ा कर दिया कि अब ये नफ्स खुदा है। अब ये नफ्स जो कहता है वी से यस सर, यही करना है हमें, जैसे कहेगा वैसे जिंदगी गुजारेंगे। तो ये नफ्स, अल्लाह के अहकाम तो गए, देयर आउट द विंडो देन। और अल्लाह के अहकाम जिसकी वजह से तोड़े, अपनी नफ्स की वजह से तोड़े, तो फिर अपना नफ्स यही तुम्हारा अपना खुदा है, नाउजुबिल्लाह। एंड वी हैव इनकलकेटेड द सेम वैल्यूज विद इन आवर चिल्ड्रंस, द सेम। इफ दे डोंट गेट डिजाइनर क्लोथ्स देन वी टेल देम यू आर वर्थलेस। बच्चियों की शादियों का वक्त आएगा इंशाल्लाह खैर से, आपकी और मेरी बच्चियों को कभी ये मत सिखाइएगा कि उनकी वैल्यू कपड़ों से या पैसों से या जेवर से होगी। नेवर टीच देम दिस प्लीज। हम इतने घटिया नहीं हैं। लोग सिखाते क्या है कि हस्बैंड की भी नाउजुबिल्लाह वैल्यू सिखाते हैं बेटियों को। देखो, इफ शी इज बाइंग यू डायमंड्स ही रियली लव्स यू, इफ ही इज नॉट बाइंग यू डायमंड्स ही डजंट लव यू। तो उस बच्ची की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है, उस मियाँ की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उस बीवी की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या है? सिर्फ माल की वैल्यू है, सिर्फ माल की। अपना शौहर भी अमीर होता है तो अच्छा लगता है, अमीर नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर हमारी वैल्यूज किसके साथ अटैच्ड है? तकातुर के साथ। Money and position, these are the only standards that we understand. This is the only language that we understand. अब खुद खा लिया, खुद पी लिया, vacationed all over the world, ate in the best restaurants. अब क्या हुआ? अब प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट फिक्र क्या हो गई? बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? इसका मतलब क्या है? दिस तकातुर, दिस इज नेवर, ये 100 का चक्कर है, ये 99 कभी पूरा नहीं होगा। दिस इज तकासुर, द ग्रीड एंड द रनिंग आफ्टर द मनी एंड द रनिंग आफ्टर द दुनिया, इट्स नेवर गोइंग टू एंड, नेवर। द लव ऑफ मनी, इट ड्राइव्स देम क्रेजी, इट डज। अल्लाह हमारी आंखें खोल दे, अल्लाह हमें दिखाए हाउ डेंजरस द लव ऑफ दिस दुनिया इज। हदीस का मफहूम आता है, अगर इब्ने आदम के पास माल की भरी हुई 2 वादियां होंगी, वो तीसरी तलाश करेगा। आप सल्लम ने फरमाया अल हक है, इफ यू हैव 2 valleys filled of gold, आप सल्लम said you're going to go searching for the third one. You're never going to say no, I have enough. You're never going to say बस बहुत हो गया। आगे द हदीस कंटिन्यूज, और आदम के पेट को कोई चीज भर नहीं सकती सिवाय मट्टी के। किस चीज की मट्टी? कब्र की मट्टी। कब्र की मट्टी जब मुंह में पड़ेगी, जिस दिन हमें दफनाया जाएगा, उस दिन ये पेट की भूख खत्म होगी, ये लालच खत्म होगी। अल्लाह उसकी तरफ पलटता है जो अल्लाह की तरफ पलट आए। अल्लाह पाक हमें अल्लाह की तरफ पलटने वालों में से बनाए, जो दुनिया की हुब्बुल दुनिया की मोहब्बत में गुम होके ना रह जाएं। Until what? Until they reach their graves. When they reach their graves, they realize what a mess we made of our lives. What a mess! What did I do? मैं जमा क्या कर रही थी? किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है पंजाबी के अंदर, मैं ओदियां गठरियां बन बैठा जिन्हें नाल नहीं जाना। Means I'm collecting stuff, मगर मैंने जो सूटकेस पैक की है वो तो मेरे साथ जाना ही नहीं है। Look at everything in your homes, everything, even if it's your children, even if it's your carpets and your chandeliers and your wallpapers and your huge TV screens and your cupboards, bags, shoes, the list is endless. Go down into the kitchen and look at your crockery and your cutlery and your silverware. Everything. जरा निकाल के अपने जोड़े तो देखें, हमारी अलमारियां उल्टियां कर रही हैं। They're so full that we can't close our cupboards. देखें अपने सामान को और देख के ये कहें कि इसमें से मेरे साथ कुछ भी तो नहीं जाना। अल्लाह, मैं क्या जमा कर रही हूँ? मैं क्यों इतना जमा कर रही हूँ? Allah, why am I so madly in love with the dunya that I can't focus on the akhirah? Because this is what takatur is trying to wake us up from. And takatur, इसकी जो धुंध है ना, सूरह तकातुर इस धुंध को तोड़ रही है, उसकी दुनिया की अफेक्ट को कम कर रही है। दुनिया थोड़ी तो कम होगी,
दुनिया की इज्जत, इसके पीछे भागना कम करेंगे, that's when we'll get time to work towards the आखिरा. In another hadith आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, इब्ने आदम बढ़ता रहता है, दो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं, हुब्बुल माल और लंबी उम्र की मोहब्बत. अब जैसे बढ़ता गया इंसान तो माल की मोहब्बत, और फिर जब माल आ गया तो फिर ज़िंदगी भी लंबी चाहिए अल्लाह मियाँ, क्योंकि हमने माल एंजॉय भी तो करना है. आयत नंबर 2, कब तक ये तकातुर कब तक धुंध बना के रखेगी, दिमागों को इनके नम रखेगी, दुनिया के अंदर ओवर इन्वॉल्व रखेगी, टिल यू रीच द ग्रेव्स. आयत नंबर 2 अल्लाह अल हक कह रहे हैं, टिल यू रीच द ग्रेव्स. वन ऑफ द मीनिंग्स इज यू आर ऑलरेडी डेड, यू आर अ डेड मैन वॉकिंग. ये तुम्हारा हाल है, ये तुम्हारे सर के ऊपर तकासुर सवार है कि तुम तो अब जागोगे ही नहीं, जब तक कब्र में जाके गिरोगे तो you're a dead man walking. जब बद्दू अरब के they heard this आयत, अल्लाह उसने कहा कि अल्लाह की कसम ज़ियारत करने वाला तो मकीन नहीं होता. जब उसने ये आयत सुनी तो मुफस्सिरीन ये कहते हैं, उलेमा कहते हैं कि कब्र को कभी आखिरी रेस्टिंग प्लेस नहीं कहना चाहिए. कब्र इज मोर लाइक अ स्टॉप ओवर. इट्स एयरपोर्ट का लाउंज नहीं होता, ट्रांजिट लाउंज. कब्र इज अ ट्रांजिट लाउंज बिकॉज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी जन्नत और जहन्नम. सो अल्लाह पाक इज सेइंग विजिट द ग्रेव. आप विजिट द ग्रेव टू रिमेंबर योर ओन डेथ. मैंने आपको कहा, ये तो कहते हैं कि जी हमें तो बताया ही नहीं कब्र की बातें, हमें तो डर लगता है, उफ हमसे मत करें. सो इवन दो आई हैव नेवर रियली स्पोकन टू यू अ लॉट अबाउट द कब्र, आई वांट टू डिस्क्राइब अ लिटिल बिट अबाउट द कब्र. व्हाई? बिकॉज अल्लाह करे कि हमारे दिल खुल जाए और हमारे ऊपर असर हो जाए. क्योंकि कब्र जो है वो पुकारती है. पुकारती का मतलब है इट कॉल्स आउट. क्या पुकारती है? मैं खामोशी का घर हूँ. और कब्र पुकारती है मैं अंधेरे का घर हूँ. इट्स वेरी डार्क. कब्र पुकारती है मैं वहशत का घर हूँ. इट्स हॉरिफिक, इट्स वेरी स्केरी. मैं कीड़ों का घर हूँ. अब मुझे ये बताएं कि ये जो कब्र का पुकारना है, ये जनाजे को देख के हमें मौत क्यों याद नहीं आती? क्यों हम इतने पत्थर दिल? Why are we so hard-hearted? Why are we so hard-hearted that even at somebody's janaza we are only looking at social statuses? ओ जनाजे पे कौन आया? कौन फलाना मिनिस्टर आया था? ओ जनाजे के ऊपर और कौन आया? कितने लोग थे? कौन से कब्रिस्तान के अंदर दफनाया? जनाजे के सोयम के वाइट चिकनकारी के काम हुए हुए जोड़े हैं ना हमारे पास. देखें, अपना हम खुद चेक करें, हम कौन है? हम किसी के मरने पे जा रहे हैं, हमारा दिल क्यों नहीं दहलता? जनाजों को देख के हमें अपनी मौत क्यों नहीं याद आती? बिकॉज दुनिया ने हमें इतना हार्ड हार्टेड बना दिया, इतना हार्ड हार्टेड बना दिया. जनाजे की नमाज की जगह पे, नमाज जनाजा में कभी पूछिएगा अपने शौहरों से, वहां पे बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, बिजनेस डीलिंग्स हो रही होती हैं, कनेक्शंस आर बीइंग मेड ओवर देयर. गाफिल है ना, गाफिल है. गाफिल के जनाजे पर गाफिल जमा होंगे, जाकिर के जनाजे पर जाकिर जमा होंगे. अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हमारे जनाजे पे जाकिर जमा हो. Think about your priorities. Think about what this takasur has done to our lives. This shirt that I'm wearing, it is only a need. It does not define who I am. ये सामान है, this is stuff. ये मेरी वैल्यू थोड़ी बताएगा. मैंने सना सफीनस का जोड़ा नहीं पहना तो मेरी वैल्यू नहीं होगी. ये होता है दुनिया के ऊपर. Those people who are hollow inside, they believe that wrappings are everything. एवरीथिंग, हर चीज रैपिंग से होगी, हर चीज. दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ना खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है. देखें, है तो है, नहीं है तो नहीं है तो पहने, कोई मना नहीं है. और अगर नहीं है तो आप घटिया नहीं बन जाते माल ना होने से, नाउजुबिल्ला. इट डजंट चेंज योर सेल्फ रिस्पेक्ट. बट द पीपल जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसके ऊपर बेस्ड है ना, सामान के ऊपर, माल के ऊपर, दे इवन डिफाइन अदर्स बाय द सेम स्टैंडर्ड. द सेम स्टैंडर्ड. जूते से लेके ऐसे स्कैन करेंगे, कौन सा जूता, कौन सा बैंगल, कौन सा क्लिप, कौन सा चप्पल, कौन सी बैग, कौन सा कपड़ा, कौन सा जोड़ा, यूं स्कैन करेंगे. एंड देन दे विल डिसाइड कि तुमसे बात करना उनको मुनासिब है कि नहीं है. ये स्टैंडर्ड नहीं है लोगों को जज करने का, ये दुनिया का स्टैंडर्ड है. दिस इज व्हाट वी हैव बिकम.
That's why they demanded. अच्छा, अब फिर वो जो कहते हैं कि जी फलाना जोड़ा लेकर आए और इतने लाखों की मेरी बेटी के लिए वलीमा करें और इतने करोड़ों का वो करें, तो उसने बेटी की तो इज्जत ना की, उसने अपना रिस्पेक्ट ना किया, उसने कौड़ियों के दाम बेटी की वैल्यू लगाई है, कौड़ियों के दाम। ये चीजें नहीं है लोगों की वैल्यू लगाने की कि किसके पास कितना माल है और कौन कितना माल उड़ा सकता है और फेंक सकता है। ये तकासुर सिखाता है। एंड दिस इट सीम्स लाइक इन टुडेज सोसाइटी इट्स रियली बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। आयत नंबर 3 and 4 अल्लाह पाक अब डांट लगा रहे हैं, नेवर सून यू विल कम टू नो, नेवर सून यू विल कम टू नो। अब ये जो डांट है ये इसलिए है कि तुम बाज आ जाओ, तुम क्या तमाशा कर रहे हो दुनिया के ऊपर, तुम बाज आ जाओ। डेफिनेटली यू विल सून नो। व्हाट विल यू नो? ये तो नहीं पता है। आयत इज ओपन, यू विल सून कम टू नो, यू विल कम टू नो दैट योर रैट रेस वाज यूजलेस। बिल्कुल बेकार थी ये तुम्हारी जिंदगी के गम, और ये जो तुम सामान जमा कर रही थी, एक एक चीज बेकार थी इसमें से। पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? द डे अपनी कब्र में लेटेंगे पता चल जाएगा। हदीस का मफहूम आता है, इब्ने आदम का बेटा कहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसका सिर्फ इतना है जो वो उसने खाकर खत्म कर दिया, जो पहनकर पुराना कर दिया, या जो सदका करके आगे भेज दिया। क्यों? ये बाकी तो सब कुछ इनहेरिट हो जाएगा। ये घर छोड़ूंगी मेरे बच्चे ले लेंगे, पेंटिंगें छोड़ूंगी मेरे बच्चे ले लेंगे, शैंडलियर्स छोड़ूंगी मेरे बच्चे ले लेंगे, जेवर छोड़ूंगी मेरे बच्चे लेंगे। कब्र में मैं कुछ भी नहीं लेके जा सकती। पीछे से उल्टा लड़ाइयां हो रही होंगी खानदानों की पूरी। यही होता है जायदादों के ऊपर, क्या होता है, यही होता है तमाशा। और मैं कब्र में जा रही हूं ऑल अलोन विदाउट जीरो। पूरी जिंदगी 70 साल जो सामान जमा किया वो सारा सामान यहां छोड़ के जाना है। क्यों? इसलिए कि कब्र में तो ना अलमारी है और ना कफन के अंदर जेब है। तो पहले से सोचे ना, फिर पहले से सोचे, वेयर आर वी स्पेंडिंग आवर टाइम, व्हाट आर वी कलेक्टिंग। बिकॉज देखें जो सदका कर दिया वो आखिरत के बैंक बैलेंस में हदीस बता रही है कि जमा हो गया। एवरी अमल जमा हो गया। हर अमल अल्लाह के लिए करे, हर अमल अपनी आखिरत बनाने के लिए करे। And then Allah saying this is repeated twice. Why? To show the warning and to recognize the menace that you're headed to a disastrous end. बहुत disastrous, dangerous situation है। और जरा आप एतराना तो देखें, अफसोस the one who's collecting। अच्छा, अब एतराते कैसे पहले समझ में आए। शो ऑफ किसके सामने करते हैं? शो ऑफ Nauzubillah is always in front of the one who has less than you, not more than you. You don't have guts to show off in front of the one more than you. जिसके पास मर्सिडीज है वो किसके आगे एतरा रहा है? जिसके पास सुजुकी है। सुजुकी वाले के आगे मर्सिडीज वाला यूं यूं करके गाड़ी चलाएगा ना, एतराएगा, ऐसे कड़क उसका हाथ होगा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। बात समझ में आई आपको? अब जिसके पास प्राइवेट प्लेन है उसके आगे वो मर्सिडीज वाला क्या एतराएगा? नॉट एट ऑल, not at all. He can't show his wealth to the one who's in front of the one who's richer than him. वो तो खुद बेचारा कॉम्प्लेक्स में है कि उसके पास प्लेन है, मेरे पास देखो खाली मर्सिडीज है। मेरी मर्सिडीज तो उसके प्लेन के आगे मोटरसाइकिल भी नहीं लगती, सुजुकी भी नहीं लगती। तो फिर तो ये इनका गम जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाला। This is what I'm trying to show you. कभी भी जिंदगी में this is useless, this rat race, because ये कभी भी पूरी की पूरी दुनिया किसी को नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती है। दे विल ऑलवेज ट्राई, एंड कितना कुछ कोशिश कर दी ना वन अप होने के लिए। वो जी दुल्हन पता चला हेलीकॉप्टर में आ रही है और वो लैंड हो रही है नीचे, शी इज कमिंग डाउन फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। क्या क्या चीज़ें नहीं की हैं, क्या क्या तमाशे नहीं देखे हमने। ये सब रैट रेस है, ये सब तकासुर है। एंड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी आर नॉट फॉर सेल। हम बिकने के लिए नहीं है। तो जब हम बिकने के लिए नहीं है तो अपनी इतनी एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों? Why are you trying to impress people? Why? You don't need to. इज्जत अल्लाह देता है, जिल्लत अल्लाह देता है। We need to get our priorities straight. We need to find the meaning of life. And कब्र के सवालों का जवाब देना है। ये भी तो याद करें हम, कयामत के दिन अल्लाह के आगे खड़े होके अल्लाह को जवाब देना है, ये याद करें हम। एंड देन आयत नंबर 5 के अंदर इल्मुल यकीन इज मेंशन्ड, इल्मुल यकीन। एंड इसके अंदर आ रहा है काश, काश you had it, the absolute truth. What is ilmul yaqeen? Quran and Hadith. Quran and Hadith. ये ilmul यकीन ऐसा बिलीफ कि जैसी ये आयतें पढ़ी हैं बस ऐसी कयामत होगी।
जैसी कुरान की आयतें और हदीस ने बता दिया ऐसा ही दिन आएगा. सो देन व्हाट हैपेंस इज इल्मुल यकीन क्रिएट्स पीस विद इन द नफ्स. आपको सुकून आ जाता है. देयर इज नो डाउट्स. यकीन आ जाए. सो यू आर नॉट लुकिंग फॉर इल्मुल यकीन. ऐसा यकीन है, यू आर नॉट लुकिंग फॉर वेरिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज माई मदर. 100% आई बिलीव वो मेरी माँ है. मुझे किसी DNA टेस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह माई मदर इज माई मदर. अब अरबिक के अंदर दो चीजें आती हैं इसके अंदर. एक आता है नहजुस सदर, which is opening of the heart, and secondly inshiraf sadr. Inshiraf sadr is there's no turmoil. No turmoil का मतलब है I am content and I am happy that she is my mother. दोनों चीजें आ गई अब. एक I don't need a verification, and second I am happy and content with this ilmul yaqeen. This yaqeen is a combination of these two things, and Allah Pak is saying kash people would have it. काश जिसको ये इल्मुल यकीन मिल गया ना, वो काम करना शुरू कर देगा, अपनी जन्नत कमाना शुरू कर देगा. बिकॉज राइट नाउ अब यकीन किस चीज पे है? प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द रैट रेस. अटेंशन रैट रेस से हटेगी तो इल्मुल यकीन हासिल करेंगे. देन व्हाट हैपेंस इज दैट दे यूज थिंग्स. अब अगर इल्मुल यकीन है, इफ यू आर 100% श्योर about the day of Qiyamah, about how you are focused on your amal for your akhirah, your love of your Rabb. उसके बाद अगर आपने 10 करोड़ का सेट भी पहना है ना गले के अंदर, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है. इसलिए कि you are never going to wear it to impress another person. जब इल्मुल यकीन होगा, अपने खुद को एंजॉय करने के लिए, अपनी खुद की पसंद को पूरा करने के लिए, you are allowed to use Allah's ne'mats. You can use Allah's wealth. आप पहन सकते हैं, लेकिन we have to check ourselves. How many times do we wear it for ourselves and how many times do we wear it to impress others? If we are wearing it to impress others, फिर तकातुर में जाके फंस गए, फिर कंपटीशन में जाके फंस गए, फिर रैट रेस में जाके फंस गए, फिर जिंदगी का मकसद गवा बैठेंगे, फिर दुनिया की दौड़ में लग जाएंगे. इससे बचना है. बहुत ज्यादा दुनिया भी मत मांगे. हर वक्त दुनिया मांगते रहते हैं, अल्लाह मुझे और दे दे, अल्लाह मुझे और दे दे, अल्लाह मेरी झोली भर दे. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू मेक दुआ, अल्लाह पाक जितने बारिश के कतरे हैं ना, अल्लाह पाक इससे भी ज्यादा मेरी झोली को भर दे. अल्लाह के खजाने हैं, वो कभी खत्म होने वाले नहीं है. जितना मांगना है अल्लाह से मांगे, बट बी अवेयर जितना अल्लाह से मांग रहे हैं उन सब का हिसाब देना है. दैट इज व्हाट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ. That is the mentality that we need. हदीस का मफहूम आता है कि थोड़ा हो और पूरा हो जाए, बेहतर है उससे कि ज्यादा हो और गाफिल कर दे. अब इल्मुल यकीन ऐसा इल्म ऐसे आलिम के लिए हिलाकत है जिसने इल्म हासिल किया और यकीन नहीं किया. लाइब्रेरीज ऑफ इल्म है उनके पास, यकीन 2 पैसे का नहीं है. और ऐसे आलिमों का अमल भी नहीं बदलता. इल्म आता है जिसके पास, उसका अमल चेंज होता है. अगर अमल चेंज नहीं हो रहा मींस इल्म नहीं है. इल्म नहीं है वो खाली वो लाइब्रेरीज, वो एक लिप सर्विस हो रही है. एंड आयत नंबर 6 के अंदर बताया जा रहा है, ताकीद बताई जा रही है. ताकीद के अंदर ट्वाइस लाम और नून के ऊपर जो तशदीद दी जा रही है, इसका मतलब है कसम अल्लाह की, यानी लाजमन तुम जहन्नम देखोगे, लाजमन तुम जहन्नम देखोगे. हु द वन हु नेवर गॉट इल्मुल यकीन, वो जहन्नम देखेगा. ही नेवर हैड टाइम बिकॉज ऑफ द रैट रेस. द वन हु गॉट इल्म बट हैड नो यकीन, had no amal in his life, in the मैदान of हशर, hell is going to be dragged out in front of them. and आयत नंबर 7 के अंदर ainul यकीन, ainul यकीन, आइन इल्मुल यकीन कुरान और हदीस को पढ़ने से मिल जाता है. ainul यकीन कौन है ये लोग? अब they never believed on the दुनिया about the day of क़यामत. वो बस हर वक्त कहते थे हमें प्रूफ दिखाओ, show us the evidence we're going to be raised, show us how we're going to die, show us Jannat, show us Jahannam. Now they are going to see it, they are going to touch it, they are going to taste Jahannam. They will see everything on the day of Qiyamah. This is Ainul Yaqeen. This is Ainul Yaqeen. And Ainul Yaqeen ka koi, there is no purpose, it's useless, because there are 2 ways to attain the ilm of akhirah. One is जो जन्नती का बसीरत है ना,
उसकी आंखों से देखे, ही हैज एन इनसाइट, वो ईमान लेकर के साथ पे आया, ईमान बिल गायब, ईमान बिल गायब, दीन और कुरान और हदीस पे जो वो ईमान लेकर आया है, ही इज नॉट वेटिंग फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। इफ ही इज नॉट वेटिंग फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन तो उसको मिलेगी क्या? फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब फलाह। वो डायरेक्ट जन्नत जा रहा है, वो जहन्नम के अंदर गिर के इंशाल्लाह जन्नत नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट टिकट है उसकी, नो स्टॉप ओवर इन जहन्नम, ही इज गोइंग स्ट्रेट टू जन्नत। जहन्नमी कौन है? उसकी बसारत नहीं है, लिटरली आइनुल यकीन। उसने कहा मुझे दिखाओ जहन्नम, मैं देखना चाहता हूं। तो देखो, अब कयामत का दिन आ गया, देखो जो मांग रहे थे, अब देखो। बट इट डजंट मैटर नाउ, इट डजंट मैटर। अब तो उनको 100% यकीन आ जाएगा, अल्लाह को, फरिश्तों को, कयामत को, जहन्नम को, जन्नत को, सबको अपनी आंखों से देख लेंगे। तो मुझे बताएं, वो ईमान वाले नहीं हो जाएंगे? ईमान तो वो ले आएंगे, लेकिन कयामत के दिन ईमान लाना कोई ईमान लाना नहीं है। ये ऐनुल यकीन वाले, दे विल फिजिकली सी हेल विद देयर ओन आईज। फिर वो कहेंगे, फर्स्ट कैटेगरी जन्नतियों की, उनका माइंड सेट क्या है? वो कहते हैं समयना व अताना, वी हर्ड एंड वी ओबे, समयना व अताना, वी कांट रिस्क हेल। बस सुन लिया हमने, बता दिया अल्लाह ने कुरान के अंदर, अब इसके अंदर क्यों और क्या और कैसे और शक और कब करूंगी और क्या, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। मुझे अपनी जन्नत कमाने के लिए मेरे पास 10-20 साल ही तो रह गए, मैं कैसे कमाऊंगी अपनी जन्नत अगर मैं क्यों और क्या में लग जाऊंगी। तो इल्म और यकीन वाले, जैसे ही इल्म आ जाता है ना कुरान और हदीस का उनके दिल के ऊपर, वो काम पे लग जाते हैं। ऐनुल यकीन वाले, दिस इज द सेकंड कैटेगरी, दे आर गोइंग टू हेल। व्हाई आर दे गोइंग टू हेल? वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम तो देखेंगे तो मानेंगे। तो फिर अब जाएं जहन्नम के अंदर, जल के देखें, जल के माने कि जहन्नम कैसी चीज है, क्योंकि अल्लाह ने तो बता दिया, बहुत स्कैरी है इन आयतों के अंदर। अलिफ लाम मीम सजदा के अंदर आयत नंबर, अलिफ लाम मीम आयत नंबर 12 है शायद। वो कहेंगे, अल्लाह पाक से कहेंगे, कौन? ये जहन्नम के अंदर गिरने वाले, ए हमारे रब। कितने प्यार से पुकार रहे हैं ना अल्लाह को काफिर, कितने प्यार से कह रहे, ए हमारे रब। दुनिया पे मानते उसको रब, अल्लाह उसको हर चीज बख्श देता, हर गुनाह बख्श देता। कयामत के दिन जाके इतने प्यार से, जैसे मक्खन नहीं लगा रहे, ए हमारे रब, हमने अब देख लिया और सुन लिया, अल्लाह हमको लौटा दे, हम अमल करेंगे, अब हमें यकीन आ गया। उनसे कहा जाएगा कयामत के दिन, टू लेट, टू लेट। अल्लाह को ये ऐनुल यकीन वाले की जरूरत ही नहीं है, He doesn't need them. उनके यकीन से अल्लाह की नाउजुबिल्लाह ऑथेंटिसिटी तो नहीं बनती है, नाउजुबिल्लाह। कयामत के दिन वो देखेंगे जहन्नम को, वो कहेंगे अल्लाह हमें 1 मिनट के लिए दुनिया पे भेज दे, हम अमल कर ले, 1 मिनट के लिए भेज दे दुनिया पे, हम कोई नेकी कर ले अल्लाह, हम कोई कलमा पढ़ ले, तो फिर समझे। आज हमारे पास, me and you, this time we have to understand how precious it is. We have iman in our hearts, we have oxygen in our lungs, and these 9 days of Dhul Hijjah, अब जिक्र करें, तस्बीह करें, नेकियां अमल कमाएं। क्यों? क्योंकि हमें ये जन्नत चाहिए है, इंशाल्लाह। This is what we have to work towards. And ayat number 8, and ayat number 8 is again बहुत भारी आयत है, बहुत भारी आयत है। अगर हम समझें क्या कहा जा रहा है आयत नंबर 8 के अंदर, and thereafter on that day you will definitely be questioned about bounties. नेकियां, नेमतें, बाउंटीज इज नेमतें, अल्लाह की नेमतों के बारे में क्या बताया जा रहा है? यू विल बी आस्क्ड अबाउट देम, सवाल किया जाएगा। वन ओपिनियन इज दैट एवरीवन विल बी आस्क्ड अबाउट देम, एंड उसके अंदर हदीस का मफहूम बताता है किस चीज के बारे में पूछा जाएगा? योर एज, in what way did you spend your life, in what pursuits did you spend your youth, जवानी किधर गुजारी थी, how did you earn your wealth, हलाल से कमाया था या हराम से, how did you spend your wealth, रैट रेस में, शो ऑफ में तुम्हारा सारा माल उड़ गया था या किसी गरीबों की खिदमत भी की थी, किसी गरीब को खाना खिलाया था, किसी यतीम की शादी करवाई थी, कहाँ गया वो माल, किधर उड़ा रहे थे तुम माल दुनिया पे? ये अल्लाह के सामने खड़े होके अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। एंड देन द फिफ्थ क्वेश्चन, डिड ही प्रैक्टिस द नॉलेज दैट ही हैड,
इल्म हासिल किया था दीन का? क्यों नहीं किया था? Were you too busy in tea parties and being a social butterfly कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं था कि तुम दीन का इल्म हासिल करती, तुम अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करती? In another hadith, Abu Huraira narrates that the first question that Allah will ask man concerning bounties shall be, did I not give you good health? And did I not quench your thirst with cold water? मेरी बंदी में ठंडे पानी से तेरी प्यास नहीं बुझाता था क्या? तुझे याद है? ये भी अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह पूछेगा हमसे, ठंडा पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, तो हम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं? अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन। May Allah save us from this. अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबा यसीरा। ज़ाहिर की नेमतें, बातिन की नेमतें। Some ulama say that the Jahannami are going to be asked also about this, कि तुमने क्या किया, और हिसाब किताब के बारे में पूछा जाएगा। And when they enter, अच्छा, even the guards at Jahannam, अब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, the guards are asking them what? Did not a warner come to you? तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया? कोई तुम्हें नहीं बताने वाला था अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में? Did not a warner come to you? And they will say what? He will say, yes, he came to us and we called him a liar. Greatest नेमत दुनिया के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुरान और दीन इस्लाम है। ये हमें पता चलेगा क़यामत के दिन। May Allah bless us with the ability to prepare for our qabr before we reach our qabr. Anas radiallahu anhu narrates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that a man will have 3 registers on the day of judgment. The first register will contain his good deeds. The second register will contain all of his sins. And the third will contain all of the bounties that Allah blessed him with. Allah will tell the smallest bounty to take its price from the person's good deeds. Smallest bounty. Allah के सबसे छोटी नेमत कोई सोचे, अल्लाह की सारी नेमतें बड़ी हैं। Smallest bounty, एक eyelash, one eyelash. अल्लाह कहेगा चलो आओ, इसके अमाल नामे में से अपनी प्राइस, अपनी कीमत लो तुम जाके। The smallest bounty will take all of the good deeds and will submit that it has still not been paid its full price. अल्लाह की सबसे छोटी नेमत, हमारा सारी नेकियां अगर ले भी गई तब भी वो कहेगी अल्लाह पाक इसने मेरी कीमत अदा नहीं की है, इसकी नेकियों ने मेरी कीमत अदा नहीं हुई है। ये है अल्लाह की नेमत है। The person will still have all of the sins to account for and the rest of the bounties to pay for. However, when Allah wishes to shower a person with mercy, He will tell him, "O my slave, I have increased your good deeds. I have forgiven you your sins." The narrator of the hadith states that it was most probably on this occasion that the Holy Prophet ﷺ added that Allah will also say to that person, "I have given you all my bounties as a gift without a price." अब ये एज अ गिफ्ट क्या है? अल्लाह की देखे ना कैसी नेमतें हैं। हमारे किडनीज फंक्शन करते हैं, अगर अल्लाह ने कहा होता 2 नफल पढ़ो फिर किडनीज फंक्शन करेंगे, 2 नफल पढ़ो फिर किडनीज फंक्शन करेंगे। आंख खोलनी है, पहले इतनी तस्बीह पढ़ो 200 की 500 की, फिर आंखें खुलेंगी। कान काम करने हैं, पहले इतनी तस्बीह पढ़ो, फिर हमें पता चलता कीमत क्या होती है इन नेमतों की। अल्लाह पाक is saying on the day of Qiyamah, I will tell man what? मैंने तुम्हें हर अपनी नेमत फ्री कर दी, फ्री, क्योंकि हक ये है कि अल्लाह की एक नेमत अगर हमसे हिसाब मांगने आ गई तो वो हमारी सारी नेकियां खा जाएगी और फिर भी उसकी हम कीमत पूरी नहीं कर सकते। अल्लाह की एक नेमत की। Allah has granted every bounty to man without man earning them. Allah can therefore question a person about how he used these bounties. Fortunate as those people who engage in Allah's ibadah, are grateful to Him and constantly fear retribution from Allah. On the other hand, most wretched are those who have every bounty and do not even think of submitting to Allah. May Allah make us one of those who submits to Allah. May Allah make us one of those who can prepare for our qabr and can prepare for our akhirah before we reach there. And on a side note, Abdullah bin Umar narrates that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam once asked them, "Is there any of you who is able to recite 1,000 verses of Quran daily?"
The Prophet ﷺ's companions, Sahaba replied, who can have the strength to recite 1,000 verses daily? Ya Rasulallah. Thereupon the Prophet ﷺ said, can you recite Al-Hakamut Takasur? This means that the reward of reciting Surah Takasur equals the reward of reciting 1,000 verses of the Quran. देखें ये क्यों बताया जा रहा है, इसलिए कि मैं और आप हम सब निकम्मे काम पे लग जाएं. कुल हुवल्लाह पढ़ लें 3 दफ़ा 4 दफ़ा, एक कुरान का सवाब ले लें, सूरह तकासुर पढ़ लें 1 दफ़ा. ये सब इसलिए बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकि हम लगें, आमाल जमा करने में लगे इंशाल्लाह. वलाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व